Hello everyone. Hey guys, this is your J Educator Megha, and today in this Score Booster series, I am there for you with the topic chemical bonding. Guys, today we are going to focus over the concepts and the previous year questions of chemical bonding. And I'm very sure by practicing all those questions, you will be able to recall all the concepts thoroughly, and the important points you will be able to note down, and it will be helping you in a way that you are going to quickly revise the whole topic. Okay, and the most important things that we have to keep remember, I will let you know, okay, if something is missing out. So guys, this session is going to be a live session, so please be very interactive. Okay, you do message me in the comment section. आपको अगर किसी भी question का answer आता है, या if you want to know any of the thing, कोई भी query है, you please do let me know in within the comment section. I will keep my eye on it. Okay, so let's begin with it with a full spark, and you are going to have a very amazing questions. I just want to give you a glance what we are going to focus on. Okay guys, so here if we work out, guys, the questions has been taken from the topic chemical bonding. They are the previous year questions which will be involved the complex formations, what type of orbital mixing you can have. We will be focusing over the questions related to the paramagnetic and the diamagnetic behavior. Okay, what type of complexes again, the number of bond pairs, the number of lone pairs. Okay, so yeah, this is the question. So basically we need to know the structures of molecules according to the molecular orbital theory. Yeah, this is the most important topic from the chemical bonding, the molecular orbital theory. Many of the questions gets answered from the theory. So here we have key which of the following will show the permanent dipole moment, the questions related to the dipole moment, the hybridization of the molecules. Okay, the lone pairs, the sum of the lone pairs and the bond pairs, the paramagnetic diamagnetic behavior. So are you getting that what type of questions you will be getting from the topic chemical bonding? Okay, containing two covalent bonds between the two atoms of the same kinds, है ना, the covalent bonds, the hydrogen bonding, the magnetic moment, the dipole moment, right, the explanations related to the ionic and the covalent character, that is the Fezan's rule of polarization. Okay, so this is it. This is all what we need to learn in this particular topic. So I will be giving you a quick summary. देखो, chemical bonding if we want to go through now, so these are the topics which we need to focus. Of course, a concept of bonding. Concept of bonding is the very first thing, and you will be getting questions in the JEE advanced paper as well from the topic concept of bonding. Then we need to know about the octet theory, the formal charge, Lewis dot structures, valence bond theory, hybridization. We need to know about the VSEPR. These are the topics that we learn in the topic chemical bonding. VSEPR, where the questions related to the bond angles you will be able to answer. Bond angles से related questions तुम लोग कर पाओगे. Next रहता है तुम्हारा hybridization, VSEPR. Then comes your dipole moment. Questions related to the magnetic moment, paramagnetic or diamagnetic character. Okay, and then comes your Fezan's rule of polarization. Fezan's rule of polarization, where basically you learn about the ionic and the covalent character. The last is going to be the molecular orbital theory. So these are the few things that you learn in the topic chemical bonding, and yes, with the help of all these questions, all these concepts will get revised. Okay, if I am not wrong, definitely you are going to enjoy the whole session. So my only one thing that I would like, मैं जो expect करूँगी तुमसे, मेरी बस एक छोटी सी expectation ये है, if you are attending the lecture, then please attend it completely, thoroughly.
अगर नहीं अटेंड करना है, इतना टाइम नहीं है, देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ अटेंडिंग द लेक्चर, ठीक है। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, ठीक है, डेडिकेशन रखो, अगर डेडिकेशन नहीं है देन लीव इट, okay. So on this particular note we are going to begin with the whole session. Got it? Snappy Jerk is saying, ma'am, MOT के अच्छे questions. Okay, so if you want more questions on MOT, then I do have one more slide. देखो, I do have one more file for you. इसमें तुम्हें MOT के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे. All these questions related to the MOT, bond strength, bond orders. Okay, so if you ask me, I will definitely be helping you with whatever you people required. है ना, डायमैग्नेटिक नेचर इन दी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, जो भी हमारे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी बनेंगे वो तुम्हारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सॉल्व होंगे, ठीक है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस इफ यू विल बी हैविंग अ ग्लांस, स्नैपी जर्क, आपने मेरे से पूछा, सो हेयर इज द आंसर फॉर योर क्वेरी। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे, मोस्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर क्वेश्चंस तुम्हारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ही हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू गुड क्वेश्चंस ऑन दिस, या these are the questions I can give you and I can make you practice. Getting my point? N2, C2, sigma bond, pi lactone, okay, these are the very very good questions from the molecular orbital theory. चलिए guys, so this is it, these are the 30 questions, majority are on molecular orbital theory. अभी इसको तो रोकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये फाइल में कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले हैं एंड दे आर इन टोटल, अगर तुम इन्हें देखोगे तो दे आर 15 इन नंबर, है ना। ये 15 क्वेश्चंस लगभग हैं तुम्हारे जो तुम्हें आज करने हैं, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक्स, सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल एवरी अदर थिंग इन अ वन सिंगल गो, है ना, सब कुछ जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे, ओके। चलो फिर लेट्स बिगिन विद इट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Geometrical shapes of the complexes formed by the reaction of nickel +2 with the Cl negative, Cn negative and H2O respectively are. मतलब तुम्हारे जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे जो कॉम्प्लेक्सेस के बनेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ निकल विथ Cl negative, Cn negative एंड H2O respectively are. तो आप बताएंगे व्हाट कुड बी द आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम में बच्चे बोलते हैं कि मैम दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये निकल आयन का है तो ये थोड़ा सा हमारा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में भी चला जाता है। तो मैं बताऊं अगर आपको बहुत क्लियरली, तो अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग में वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज वेल, है ना। और तो इसीलिए निकल का ये कॉम्प्लेक्स भी, ये टॉपिक हमारा केमिकल बॉन्डिंग का भी है और आप इसे अपने D&F ब्लॉक एलिमेंट्स का भी कह सकते हो, ठीक है। सो बोथ द वेज इट वर्क्स, बट डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। मैं बता देती हूँ, दिस इज निकल +2, ठीक है, अभी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, वी कैन मूव अहेड। ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय द रिएक्शंस ऑफ निकल। अगर मैंने आपको बोला कि यू हैव अ निकल Na+2 और इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है Cl नेगेटिव के साथ, तो Cl नेगेटिव के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा ये बताना है। तो ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। तो यू जस्ट फिगर इट आउट कि निकल +2 कब हो सकता है, जब आपने NiCl का होल 4 लिया हो और यहाँ पे 2 नेगेटिव लिया हो, ठीक है। अगर आप इस तरह का कॉम्प्लेक्स लोगे तो यू विल बी गेटिंग x - 4 = -2, तो x = +2, यानी कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, कैसे कर सकते हो। निकल अगर मेरा +2 में है, ठीक है, एंड कंसिडरिंग क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, तो क्लोरीन तुम्हारा वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड्स क्या करते हैं, वीक लिगेंड्स के केस में देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग तो होगी नहीं, और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, दैट इज 4s2 3d8। तो अगर मैं निकल +2 का बोलूँगी तो इट इज़ गोइंग टू बी हीलियम नियोन आर्गन एंड 3d8, और 4s 0 हो गया और यहाँ पे 4p भी 0 हो गया। इफ़ यू विल फिल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल, ठीक है, एंड दिस इज द 4s ऑर्बिटल, दिस इज द 4p ऑर्बिटल। अब देखोगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने क्या बोला, क्लोरीन एक वीक लिगेंड है तो देयर विल बी नो पेयरिंग, तो पेयरिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ये अपने ये 3 ऑर्बिटल्स को लेगा हाइब्रिडाइजेशन में जाने के लिए, यानी कि ये वाले ऑर्बिटल्स। तो यानी कि दिस इज योर 4s, दिस इज योर 4p, तो इंटरमिक्सिंग किसकी हो रही है,
there is no intermixing of the 3d orbital. The intermixing is only of the 4s and 4p. So we can say that this leads to the sp3 hybridization. तो तुम्हारा sp3 hybridization का मतलब होता है the tetrahedral complex is going to form. अगर तुमने इतना पता लगा लिया, so rather than doing the whole question, you can simply say कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, the answer is B. आ गया ना आंसर? So tell me, are you able to answer the question? It's very simple, right? And अगर तुम्हारे पास cyanide था, so what is the difference the cyanide will create? For the case of the cyanide, here you know that this is going to be the argon 2, 10, 18. This is 3d8, 4s0, 4p0. But here, if I will fill the orbitals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this is 4s and this is 4p. आपने क्या डिफरेंस नोट किया कि यहाँ पे वी हैव अ साइनाइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? इट लीड्स टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी एज पर विच थ्योरी? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से. और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो ये वाला अंदर चला जाएगा, ये वाला पेयरिंग में चला जाएगा. तो अगर ये पेयरिंग में चला जाएगा तो यू विल बी गेटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये ऑर्बिटल तुम्हारा खाली हो गया. यू नीड ओनली फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, साइनाइड के साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, तो 4 के लिए यू नीड ओनली 4 ऑर्बिटल्स. सो दीज आर द 4 ऑर्बिटल्स विच विल पार्टिसिपेट, दैट इज DsP2, एंड DsP2 इज फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा NiCN का होल 4 2 negative, where the nickel is in its +2 oxidation state. So this is going to form the square planar complex. And जब आप देखोगे निकल को, तो निकल वाटर के साथ बनाएगा H2O का होल 6 and this is going to be +2. ये क्या बनाएगा? ये वाटर के साथ बनाएगा octahedral complex having the coordination number 6. So yes, this is the absolutely correct answer. Done everyone. अब अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं. एज्यूमिंग द 2s2p मिक्सिंग इज़ नॉट ऑपरेटिव. मतलब मैंने आपको बोला है कि मैंने आपको बोला है कि यू कैन इंटरमिक्स द ऑर्बिटल्स लाइक 2s एंड 2p. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम 2s2p की मिक्सिंग इज़ नॉट अलाउड, इज़ नॉट ऑपरेटिव मतलब नॉट अलाउड. ठीक है, नॉट अलाउड. Now the question is asking the paramagnetic species among the following is. You need to find it out which are the paramagnetic species. तो paramagnetic species का simple means they have the unpaired electrons. They must have the unpaired electrons. यहाँ पे you can see that this is Be2, B2, C2 and N2. So all are homo diatomic molecules. सारे के सारे homo diatomic molecules हैं. And which theory we have to apply there? पिछला question valence bond theory से था. The previous question was from the VBT से था. ये जो तुम्हारा second question है, this question is from the molecular orbital theory. पहले समझो question आया कहाँ से है? Molecular orbital theory. तो molecular orbital theory हमें क्या कहती है? Here we are talking about the beryllium. Beryllium क्या होता है? What is beryllium? बेरिलियम इज, बेरिलियम का मुझे मिक्स करके बनाना है Be2, यानी कि लिथियम बेरिलियम. बेरिलियम इज 2s2 एंड दिस बेरिलियम इज ऑल्सो 2s2. तो जब इनके ss ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई sp मिक्सिंग हो रही है? नहीं हो रही है. ss ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है? येस. तो जब ss ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी तो यानी कि दिस इज 1s2 एंड 2s2. तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा 1s ऑर्बिटल है वो बनाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर बनाएगा सिग्मा 2s and sigma anti-bonding 2s. If you will be having all this, you have to fill the number of electrons. तो मैं electrons fill करने हैं. तो total number of electrons are 4 और 4, 8. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No unpaired electron. कोई unpaired electron नहीं है. Now similarly you have to do for the B2. B2 के लिए आप करोगे तो what you will be getting? B2 में here we have lithium beryllium boron, means we have 1s2, 2s2 और 2p1, है ना. So similarly another boron will also combine like 1s2, 2s2 and 2p1. So how many molecular orbitals we are having here? तो 1s will form sigma 1s, sigma anti-bonding 1s, sigma 2s, sigma anti-bonding 2s
and the P, for the P orbital you will be getting pi 2px, pi 2py, and here the sigma 2pz. Then the antibonding orbitals will get started. That is तुम्हारी क्या हो जाएगी, pi antibonding 2px, pi antibonding 2py, and sigma antibonding 2pz. So if I am not wrong, you can also learn in this way कि यहाँ पे जो हमारे p orbitals का splitting होता है, that is in the ratio 2:1:1, है ना. So this could be the code that you can learn to make it easy for you. 2:1:1 के रेस्पेक्ट में कर सकते हो. तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराओगे तो 2 और 2 4 और 5 और 5 10, तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. नाउ हियर यू सी, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2p की मिक्सिंग हो रही है. इज देयर अ मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p? If you are having no na, right, the question is from the molecular orbital theory. You can simply say that, see that कि यहाँ पे तुम्हारे पास in the case of this you are having a p orbital, और जो p orbital में तुम्हारे पास electrons है that will undergo to the pi 2p orbital, है ना. वो pi 2p में जा रहा है, और pi 2p में जा रहा है, तो here you are getting the 2 unpaired electrons and there is no mixing of 2s and 2p की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, 2p की मिक्सिंग हो रही है ना. इसका 2p और इसका 2p मिक्स हो रहा है, तो हम तो बोल ही नहीं रहे कि 2s 2p की मिक्सिंग हो रही है ना. ऑफकोर्स नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट ऑपरेटिव. हम तो इस तरह का मिक्सिंग कर रहे हैं, हम तो 2p मिक्सिंग कर रहे हैं, वी आर गेटिंग दैट देयर आर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे अगर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो व्हाट इट गोइंग टू बी, इट इज़ गोइंग टू बी द पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर. अब सिमिलरली यू कैन डू फॉर द C2, यू कैन सिमिलरली डू फॉर द N2. जब आप C2 के लिए करोगे तो यू विल फाइंड दैट इन द सेम ऑर्बिटल यू विल बी गेटिंग 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन क्या होता है ना. अगर आप कार्बन के लिए करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 1s2 2s2 एंड 2p2. तो यहाँ पे जब आप फिलिंग करोगे तो 1 2 3 4 दीज आर फॉर द 1s ऑर्बिटल, 1s के लिए हो गई, देन 2s और 2s के लिए हो गई, एंड देन आफ्टर आपका 2p होगा, तो 2p के लिए 2 1 2 1. ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा. तो अगर इस तरह का फॉर्मेट रहेगा तो यू हैव टोटल ऑफ 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स. so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अल्टीमेटली ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इट इज डायमैग्नेटिक. दिस इज डायमैग्नेटिक. N2 के लिए आप करके देखोगे तो N2 के लिए व्हाट यू विल बी गेटिंग, दिस इज 1s2 2s2 2p3. तो सिमिलरली इफ यू विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स तो 1s के लिए हो गए, दीज आर फॉर 1s बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. देन तुम्हारा 2s के लिए हो गए बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. फॉर द 2p यू विल बी हैविंग 2 1 2 1. ठीक है, तो अगर इफ यू विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3 4 5 6 7 7 और 7 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक. तो हमने देखा कि C2 भी डाया आ रहा है, N2 इज ऑल्सो डाया, Be2 इज ऑल्सो डाया. ठीक है, ये भी तुम्हारा डाया था बिकॉज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अल्टीमेटली B इज द राइट आंसर, दैट इज B2. इज इट क्लियर? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द J Advanced 2018. ये मेंस का नहीं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द J Advanced पेपर. Now let's move ahead. ठीक है, and if anybody is there, you please message me guys. I am live for you all. The geometries of the ammonia complexes of nickel, platinum and zinc respectively are, ये बहुत ही amazing question है. दो तुम्हें ट्रांजिशन मेटल लाइंस दिए हैं, लेकिन ये पूछ रहा है अमोनिया के साथ what type of geometries they will be having. Yes, absolutely. आपने कभी देखा, समझा और इस पे फोकस किया है? लेट मी पिक अ पेन. अगर मैं बात कर रही हूँ कि निकल के साथ मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है, मुझे ज्योमेट्री बनानी है अमोनिया के साथ, और अमोनिया मेरे को क्या रखना है, आई हैव टू कीप NiNH3. ठीक है, अब मुझे नहीं पता व्हाट कुड बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, आई जस्ट सिंपली नो कि निकल का +2 कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो व्हाट इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, अमोनिया का टेट्राहेड्रल बनाएगा, octahedral बनाएगा, या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इट इज़ गोइंग टू बी, व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी. Do you know, here we can have a nickel क्या करता है, what will be its coordination number. Okay,
तो लेट्स फिगर इट आउट कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ओके तो गाइज सी, हमारे पास निकिल है, निकिल +2, सो इफ यू विल सी हियर वी आर हैविंग हीलियम नियोन आर्गन एंड दिस इज 3d8 एज द कॉन्फ़िगरेशन। जब आपके पास प्लेटिनम +2 है तो निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, तो ये आपका आ जाता है आर्गन, एंड आर्गन में व्हेन यू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स देन इट बिकम्स 5d8, ठीक है। एंड जिंक Zn+2, तो Zn+2 तो आता है तुम्हारा आर्गन एंड इट इज गोइंग टू बी 3d10, ठीक है। यहाँ पे यू विल बी हैविंग द 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो भाई जिंक के लिए तो इट्स वेरी वेरी क्लियर कि जिंक के केस में डी ऑर्बिटल इज नॉट हैविंग एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर जिंक के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डेफिनेटली वो अपने आगे के ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा, यानी कि वो 4s और 4p को ही इन्वॉल्व करेगा, 3d को तो कर ही नहीं सकता बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। तो अल्टीमेटली इट्स वेरी वेरी क्लियर कि जो जिंक होता है, जिंक ओनली फॉर्म्स द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जिंक हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही बनाता है। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर हैज़ टू बी टेट्राहेड्रल, आंसर हैज़ टू बी टेट्राहेड्रल। अब आते हो आप, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लेटिनम, जब आप प्लेटिनम की बात करते हो तो यू नो हमारा दिस इज अ स्पीशीज, द निकिल एंड प्लेटिनम दे बोथ आर हैविंग D8 एंड D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बट दे हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। यहाँ पे तुम्हारी n का वैल्यू 3 है, यहाँ पे तुम्हारी n का वैल्यू 5 है। तो व्हाट डज दिस मीन, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो अलोंग द ग्रुप आपका साइज बढ़ता चला जाता है, 3D 4D 5D है ना। 4D और 5D में मैं नहीं बोलूँगी ज़्यादा अंतर होता है, बट हाँ हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द 3D, दिस इज़ फॉर द 4D एंड दिस इज़ फॉर द 5D। सो अल्टीमेटली व्हेन द साइज इंक्रीजेज, जब हमारा साइज बढ़ जाता है तो हमारे स्पीशीज़ का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि अब अगर आप इस पर, अगर मेरे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है, इफ़ द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेज, सेंट्रल मेटल आयन का अगर साइज बढ़ता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है। और वो 2D कॉम्प्लेक्स बनाना प्रेफर करता है। वाई इट विल प्रेफर फॉर्मिंग द 2D कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब लिगेंड्स बिना झगड़ा किए विदाउट एनी रिपल्शन दे कैन बी इन द 2 डायमेंशनल स्पेस, वो आराम से 2 डायमेंशनल स्पेस में रह सकते हैं। एंड सो देयरफॉर प्लेटिनम विल प्रेफर फॉर्मिंग द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, प्लेटिनम का तुमने कोई भी कॉम्प्लेक्स कभी टेट्राहेड्रल या फिर तुमने ऑक्टाहेड्रल नहीं देखा होगा, है ना। यू विल ओनली बी फाइंडिंग दैट कि प्लेटिनम तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है 2D में, 2 डायमेंशनल में, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी 2D। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, लिगेंड्स अपने आप ही दूर दूर हो जाएंगे इफ द साइज ऑफ द सेंट्रल आइटम मेटल आइन इज मोर। लेकिन जब सेंट्रल मेटल आइन छोटा होता है तो फिर अब हम नहीं बना सकते 2D, क्यों, नाउ दे विल बी रिपल्शन, अब यहाँ पे रिपल्शन शुरू हो जाएगा, ओके। तो व्हेन दी सेंट्रल मेटल आइन इज स्मॉल, जैसे कि मेरा निकल वाला केस हो गया, है ना, निकल वाला केस हो गया, तो यहाँ पे मेरा सेंट्रल मेटल लाइन छोटा है, तो आई हैव टू प्रेफर फॉर्मिंग दी 3D कॉम्प्लेक्स। तो मैं 3D कॉम्प्लेक्स बनाऊंगी, यानी कि लिगेंड्स को दूर दूर रखूंगी, एंड या दिस कैन फॉर्म दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो तुम्हारा जो निकल है दैट विल बी फॉर्मिंग दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस इज गोइंग टू बी NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, एंड ये हो जाएगा दिस इज PtNH3 का होल 4 and 2 positive, and this is going to be ZnNH3 का whole 4 with the coordination number 4 and +2, okay. This is going to be tetrahedral, this is going to be square planar, and this is going to be octahedral. This is it. So the answer is option number A. Understood? Okay. आई बिलीव येस, जिसने पढ़ना है वो पढ़ रहा है और समझ रहा है और सीख रहा है। चलो, सो हेयर वी हैव द अनदर क्वेश्चन गाइज, कम अहेड और बताओ मुझे जल्दी से, द कंपाउंड्स विद द 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इज आर, यानी कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं। दिस इज अ क्वेश्चन नॉट ऑफ मेंस, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस। ये पे क्वेश्चन तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस से क्वेश्चन है ये, ठीक है। टेल मी कि इफ वी हैव द कंपाउंड्स विद 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, मतलब एक सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर्स होने चाहिए, व्हाट इज योर आंसर। आ गया, कंपाउंड्स भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कंपाउंड ही हो। डन,
जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है ये, इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन है ही नहीं. इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर इज, चलो मैं रिवील नहीं करी, करना शुरू करते हैं. ब्रोमीन क्या करेगा? व्हाट दिस ब्रोमीन विल डू? क्या होगा इसका ज्योमेट्री, शेप, वट एवर, विद हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? BRF5, वन लोन पेयर. जिसको आता है, राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कोई भी कैसा भी डाउट है, यू कैन आस्क मी. Answer is B and C. Multiple correct answer question. Okay? Understood? Any doubt? You can simply do the question by applying the hybrid number. मैं इसके लिए करके दिखा रही हूँ, and then for every other species you can simply do. So this is half of valence shell electrons. तुम्हारे कितने हुए? The bromine, the central metal ion, is having the 7 valence shell electrons. Number of monovalent atoms are basically 5. The charge तो कुछ है नहीं है, -0 + 0, 7, 8, 9, 10, 12 by 2 comes out to be 6. 6 मतलब 6 यानी कि octahedral it has to be. And I drawn the octahedral with one lone pair. Out of 6, the number of atoms we are having 5. So ultimately 5 bonded pairs and one is going to be the lone pair. Okay? So this is the concept that we can apply. By simply applying the hybrid number method, we can do the question. Agla question. Molecular theory. Many of you are this topic is very favorite ना. चलो करो. According to the molecular orbital theory, C2 negative is expected to be diamagnetic. यानी कि ये species diamagnetic देखा गया है. O2 positive is expected to have a longer bond length than O2. N2 positive and N2 negative have the same bond orders. He2 positive have the same energy as two isolated helium atoms. एक बारी करेंगे आप इस question को. This question is also of the JEE Advanced 2016 paper. Advanced JEE 2016. Not means it's advanced. ज़रूरी है, it's very necessary for us to do the advanced question for the JEE means preparation. हाँ, एक level ऊपर का करके चलोगे तो you will be feeling more confident for your means paper. C2 negative, right? Which means that कार्बन का मेरे पास होता है 1s2, 2s2, 2p2, है ना, 2p2. And because it is C negative, I can consider C negative and C negative. So this will become 2p3 and मतलब ठीक है, let's take for the carbon itself. I am not taking it for the C2 negative. मैं इसे simple C2 के लिए draw करती हूँ. ठीक है, I am just considering this for the C2. Okay, this means 2s2, 2p2. Carbon is also 1s2, 2s2, 2p2. If you have to fill the electrons, these are for the 1s, 2s, 2s. For the 2p, you will be having 2p. Then this is also for 2p. Then anti-bonding हो गया 2p का, 2p anti-bonding, and this is also 2p anti-bonding. So how many number of electrons? 2 or 2, 4 or 2, 6, 6 or 6, 12, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now here you are saying that there are 2 more electrons. So ultimately we will fill 2 more electrons. This is expected to be diamagnetic. Absolutely. No unpaired electrons. No unpaired electrons.
डायमैग्नेटिक, करेक्ट। O2 पॉजिटिव, सिंपली बड़े आराम से कैजुअली, है ना, यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। O2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द O2। सो व्हेन यू विल ड्रॉ द डायग्राम, दिस कम्स आउट टू बी, कलर चेंज करता है। O2 के लिए दिस कम्स आउट टू बी 1:2, 2:2, 2p4, है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज 2p4। तो अल्टीमेटली फॉर द, बट आई हैव टू ड्रॉ फॉर द O2 के लिए मुझे ड्रॉ करना है हैविंग द 2 ऑक्सीजन आटम्स कंसिडरिंग, ठीक है। तो यानी कि आई विल बी हैविंग, दिस इज द 1s ऑर्बिटल्स, 1s, these are for the 2s, and then I will be having for the 2p, that is sigma 2p, then I will be having this kind of 2p, then again the 2p, and this is for the 2p, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो हेयर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 and again 8 and 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि O2 पॉजिटिव इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। ओके, तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करनी है मुझे, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ के लिए एक काम करते हैं, O2 की पहले बॉन्ड लेंथ निकाल लेते हैं। O2 की बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए आई विल फर्स्ट फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर मैंने बॉन्ड ऑर्डर देखा तो आई विल बी फिगरिंग इट आउट कि ये आएगा आपका हाफ ऑफ, मॉर्निंग में है 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10, बॉन्डिंग में आई एम हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग में आई एम हैविंग 2 and 2 4 5 and 6 electrons. So ultimately coming out to be 4 divided by 2, that is 2, यानी कि ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास ये आया, ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा है। नाउ व्हाट अबाउट दी O2 पॉजिटिव। अब O2 पॉजिटिव के लिए मेरे को बोला जाएगा, तो आई कैन सिंपली सी कि यहाँ पे मेरा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ ऑफ Nb माइनस Na, दैट इज हाफ ऑफ Nb। बॉन्डिंग में तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे जितने अभी हैं, यानी कि 10 रहेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में बिकॉज ऑफ द 2 पॉजिटिव आई हैव टू डू द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले ही जाएंगे, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एलिमिनेटेड। तो अगर हमारा ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट होंगे तो व्हाट वी कैन फिगर आउट कि अगर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे एलिमिनेट होंगे, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल एलिमिनेट। तो ये अगर एलिमिनेट होंगे, इस सिनेरियो में मुझे ये समझ में आता है कि मेरा एंटी बॉन्डिंग से जो 6 थे वो 4 रह गए, तो अल्टीमेटली आई विल बी गेटिंग 6/2, 6/2 इज 3, यानी कि O2 पॉजिटिव में आई एम गेटिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, right? O2 positive, I am getting a triple bond, this is what I am getting। तो ultimately we can see that bond order बढ़ता है तो bond length कम होती है, तो इसका bond length is less, so इसका जो bond length है वो कम हो जाएगा, because as if the bond order increases the bond length decreases, there is an inverse relationship। तो O2 positive is expected to have a no smaller bond length than O2, so this is your wrong statement। तो B वाला हो गया आपका गलत, ठीक है। नाउ सिमिलरली यू कैन मूव अहेड फॉर द ऑप्शन नंबर सी। तुम ऑप्शन नंबर सी देखो, बिकॉज अगेन इफ इट इज़ एन एडवांस पेपर क्वेश्चन सो देयर कुड बी अ मल्टीपल आंसर, इसमें मल्टीपल आंसर्स हैं। बताओ अब मुझे अगला आंसर तुम लोग दो मुझे कि व्हाट एज पर यू व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर, एज पर यू व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर। एक बच्चा मुझे बोल रहा है कि ITN चिराग मैम विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब चिराग जो क्वेश्चन मैंने दिया है पहले वो करो, उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। यू कैन इवन लीव योर क्वेश्चंस टू मी इन माय टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन अलाउड है, तो आप भी अगर मुझे अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे मैसेज करोगे तो आई विल बी गिविंग यू आंसर देयर। बी क्यों नहीं आया? अरे सिंपल, आई हैव टू आंसर विद रिस्पेक्ट टू दी बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे बॉन्ड ऑर्डर पता है। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशनशिप क्या होता है? इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ बिकम शॉर्टर। अब देखो जब ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो यहाँ पे sp कैरेक्टर बढ़ता है, sp कैरेक्टर बढ़ता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉन्ड की लंबाई छोटी होती चले जाती है। ओके
चलिए जल्दी से मुझे बताओ, नाउ यू गो थ्रू विद द ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एंड डू लेट मी नो, दिस इज एन एडवांस लेवल क्वेश्चन, और बताओ सी और डी में से विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग. नाउ हियर इफ आई हैव टू डू फॉर द N2, देखो जो सिंपल N2 आपने देखा, दिस इज अ होमोडायटोमिक स्पीशीज, तो बिना दिमाग खर्च किए सिंपल सोचो कि होमोडायटोमिक स्पीशीज आई हैव टू अप्लाई द मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी. N2 के लिए यू हैव 1s2 2s2 2p3, यही होता है आपका. तो 2 नाइट्रोजन आइटम्स यू विल बी टेकिंग, तो डबल ऑर्बिटल्स हो जाएंगी. तो ये हो गया तुम्हारा 1s का, ये हो गया 2s का, 1s 2s का बॉन्डिंग और 2s का एंटी बॉन्डिंग. देन फॉर द 2p ऑर्बिटल्स यू विल बी हैविंग 2p, this is going to be 2p, this is again going to be 2p anti bonding and this is again going to be 2p anti bonding. ये सब हो गया. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 और 2 4 5 6 7, 7 plus 7 is 14. तो ये मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स. यस एब्सोल्युटली. तो N2, अब क्वेश्चन ने N2 का बोला ही नहीं है, उसने कहा है कि इन दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है. तो यानी कि इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट N2 पॉजिटिव, तो N2 पॉजिटिव के लिए चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. तो N2 पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ ऑफ NB माइनस Na. ठीक है. अब हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. लेकिन अब सोचो कि इफ़ यू विल बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज यू विल बी डूइंग द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 10 की जगह 9 रह गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बिकॉज यू हैव टू अल्टीमेटली डू द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 9 रह गए. एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 + 2 4, बस 4 ही हैं. तो अल्टीमेटली इट्स कम्स आउट टू बी 5/2, दैट इज 2.5. अब N2 नेगेटिव के लिए देखते हैं. N2 नेगेटिव के लिए अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हाफ ऑफ NB माइनस Na. तो व्हाट यू मीन बाय N2 नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा. तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो दैट विल गो, मैं थोड़ा येलो कलर ले लेती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो. ठीक है. तो येलो नहीं आया, ग्रीन ही है. ठीक है. तो अब देखो, अब मुझे अगर N2 नेगेटिव करना है तो N2 नेगेटिव के लिए मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा. अब नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो बॉन्डिंग में 10 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में ये 2 हो गए, 2 और 2 4 और एक 5, यानी कि 5. तो अल्टीमेटली व्हेन यू विल सी इट जस्ट कम्स आउट टू बी 5/2, दैट इज अगेन 2.5. ओ माय गॉड, मीन्स N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव दोनों के लिए आई एम गेटिंग 2.5 एज द बॉन्ड ऑर्डर. तो ये मेरे पास कैलकुलेशन है जो कि बराबर आ रहा है. सो दे हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर्स, एब्सोल्युटली राइट. सो माय आंसर इज करेक्ट. आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, ये तो मैं समझाने के लिए इतना डिटेल में कर रही हूँ, अदरवाइज यू कैन डू इट लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली. ठीक है. ये भी तुम्हारा आंसर है, ये भी तुम्हारा आंसर है. यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, क्योंकि अगर तुम्हारे मल्टीपल आंसर्स थे लेकिन तुमने एक ही स्टेटमेंट को सही आंसर किया तो यू विल बी गेटिंग ओनली 1 मार्क. लेकिन अगर तुमने ए और सी दो राइट ऑप्शन, तो तुमने दोनों को मार्क कर दिया तो यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स. ठीक है. और नेगेटिव भी रहता है यहाँ पे, किसी भी एक गलत के लिए नेगेटिव होता है, -2 में जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है. तो नंबर को स्कोर करना तुम्हारे हाथों में है, दैट हाउ विजिलेंट यू आर. So focus over the accuracy level that you could put in. Now the last option is option number D, which is He2 positive has the same energy as 2 isolated helium atoms. एक हीलियम एटम कहता है कि भाई मैं तो हूँ 1s2 स्पीशीज़. ठीक है. और एज अ गैशियस स्पीशीज़ वो एग्जिस्ट करता है. लेकिन एक He2 स्पीशीज़ जो होता है जिसमें तुम्हारे पास हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो ऐसा होता है? ये तो एक तरीके से डायामैग्नेटिक भी होता है ना. लेकिन जो He2 पॉजिटिव होता है उसमें क्या होगा, तुम्हारे पास 2 ऑर्बिटल्स होंगी, हीलियम 1s2, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3. वो तो पैरामैग्नेटिक हो गया. क्या उन दोनों की एनर्जी सेम है? नो, नेवर. दे आर नॉट हैविंग द सेम एनर्जी. सो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग. मतलब आप एक एटम को एक मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहे हो, और वो भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है. मतलब अनस्टेबल तो नहीं कहेंगे He2 को, लेकिन ठीक है, दे हैव अ डिफरेंस इन देयर नेचर्स, दे हैव अ डिफरेंस इन देयर हीलियम एटम में और मॉलिक्यूल में देयर इज अ मच डिफरेंस, राइट. सो दे आर नॉट ऑफ द सेम एनर्जीज. अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. सो एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चंस भले हम अभी तक छठे क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, बट यू हैव डेफिनेटली लर्न अ लॉट. हमने VPT का क्वेश्चन देखा, वी हैव सीन दी क्वेश्चन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी.
ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक से तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं, बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चंस आ चुके हैं, बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चंस आ चुके हैं, और तुम्हारे पास ये वाला जो तुम्हारा थ्योरी था दैट इज़ दी हाइब्रिड नंबर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से तुम्हारे पास क्वेश्चन आ चुका है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से तुम्हारे पास क्वेश्चन आ चुका है. सो अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन कवर्ड, मीन्स वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैज़ बीन रिवाइज्ड. तो बताए द स्टूडेंट्स यूज टू आस्क मैम कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए. देखो इट जस्ट दैट कि यहाँ पे तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस यू हैव डन, बट द रिवीजन, क्या तुम इतने टॉपिक्स का रिवीजन अगर करने बैठते तो तुम्हें 5 घंटे लग जाते या 6 घंटे लग जाते इफ़ यू विल गो थ्रू द थ्योरी टू रिवाइज ऑल दिस. ठीक है, एमओटी पढ़ते, वीपीटी पढ़ते, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, हाइब्रिडाइजेशन, और वो एक वही स्टेगनेंट तरीके से, एक बहुत ही बोरिंग तरीके से तुम उसे पढ़ते हो और तुम्हारे को लर्निंग कुछ गेन नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता. बट व्हेन यू डू योर रिवीजन विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस, तो देखो तुमने इतनी देर में, मतलब लाइक मेरी क्लास को स्टार्ट हुए आधा घंटा हुआ है, एंड इन हाफ एन आवर यू हैव रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, है ना. और वो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. ओके, आई कैन पिक द टॉपिक, आई कैन पिक द क्वेश्चन, आई विल गो थ्रू इट एंड या आई विल बी एबल टू मेक इट. बट पेपर टाइम में तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा, ऑफकोर्स नॉट. ओके, बिकॉज यू विल बी डूइंग योर क्वेश्चन योर ओन. वहाँ पे यहाँ पे सिखाना और सीखना नहीं चल रहा है, यहाँ पे सिखाना और सीखना चल रहा है. दैट्स व्हाई इट्स टाइम कंज्यूमिंग. ओके, चलो गाइज, एंड दीज आर द एडवांस लेवल क्वेश्चन. तो एडवांस में जो हमारे पास रिलेटिवली जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होता है हर क्वेश्चन के लिए फॉर द पर क्वेश्चन, इट इज़ बेसिकली 5 मिनट्स. यानी कि आप एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम 5 मिनट रख सकते हो, मतलब डिवोट कर सकते हो. लेकिन मेंस में ऐसा हमारे साथ नहीं होता है. मेंस में हमारे पास मैक्सिमम एक क्वेश्चन के लिए वी आर हैविंग 2 मिनट्स. लेकिन मैं बोलूँगी कि 30 सेकेंड से मैं अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है तो वेल एंड गुड. ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री सच अ पोर्शन जहाँ से तुम अपने समय को बचा सकते हो और मैथ्स और फिजिक्स में लगा सकते हो. ठीक है, तो मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे 10 सेकंड में, 30 सेकंड में हो जाएंगे, और अगर एक आध क्वेश्चन में तुम्हें 2 मिनट लग रहे हैं तो इट्स फाइन, देयर इज नो इशू विद दैट. ओके, तुम लगा सकते हो. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे लिए एडवांस का क्वेश्चन है. ओके, ये भी तुम्हारे लिए जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट ऑफ मेंस. तो मैं तुम्हें एडवांस के ही क्वेश्चंस करा रही हूँ जानकर, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारा बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो कि तुम एडवांस का कर पाओ, तो मेंस तो हो ही जाना है. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स अ सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स. यानी कि हर सेट में 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4, है ना. एवरी इज हैविंग 4 मॉलिक्यूल्स. आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल द 4 molecules possess permanent dipole moment at room temperature. Now the topic is dipole moment. तुम्हें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैविंग द परमानेंट डाइपोल मोमेंट सबके केस में. और डाइपोल मोमेंट का जो आंसर निकलता है उसके लिए पहले तुम्हें मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा. ड्रॉ द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. उसके बिना तुम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. ड्रॉ करना शुरू करो. और मज़े की बात इतनी है कि ऑप्शन बी में अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ऑप्शन सी में अलग मॉलिक्यूल्स हैं, डी में अलग मॉलिक्यूल्स हैं. तो यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर लिया और आंसर आ गया. दैट्स वाई एडवांस बिकम्स मोर टाइम टेकिंग क्वेश्चंस वहाँ हमें मिलते हैं. डू इट. BF3 परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, सभी में होना चाहिए. क्या BF3 में डाइपोल मूवमेंट होता है? नहीं होता. मुझे दिख रहा है कि इसी का म्यू इक्वल्स टू 0 होता है, तो वाई आई लुक फॉर अदर मॉलिक्यूल्स. मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है. NO2 होता है. अमोनिया होता है. POCl3 होता है. CH3Cl होता है. मतलब सबका ही नॉट इज इक्वल्स टू 0 है. रेडिकल्स भी डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं. सबका ही 0 है, इज नॉट इक्वल्स टू 0 है. यहाँ तो 0 हो गया था तो मैंने ए के बाद देखा ही नहीं. एंड यस, बी इज माई आंसर. अगला ऑप्शन, वेरी गुड चिराग. अगला ऑप्शन मुझे बताओ, क्योंकि मल्टीपल है. सल्फर डाइऑक्साइड
होता है, यस, लोन पेयर और यहाँ पे बॉन्डेड पेयर्स की वजह से, नॉट इज इक्वल्स टू 0. C6H5Cl not is equals to 0. H2SE not is equals to 0. BRF5 हाँ जी, not is equals to 0. C is also the right answer. What about option number D? BeCl2 CO2. Wrong. Need not to consider this option. CH3Cl कैसे हर्ष? Because the dipole moment, let me change the color first. If you will see the CH3Cl, the dipole moment because of the hydrogen is different and the dipole moment because of the chlorine is different. So don't you think this is a much polar bond than the other three bonds? तो यहाँ पे polarity difference है, तो dipole moment will not be cancelling each other. अगर तुम इन सबका वेक्टर एडिशन करोगे तो जो डाइपोल मूवमेंट इन हाइड्रोजन्स की वजह से आ रहा है विल नॉट बी गेटिंग कैंसल्ड बाय द क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास Q1 एंड Q2 की वैल्यू अलग है और यहाँ पे Q1 Q2 की, यहाँ पे Q2 की Q3 की वैल्यूज अलग है. ओके, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस विल पजेस मोर डाइपोल मूवमेंट देन दी. तो तुम्हारा जो CCl बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट लेट्स से μ1 है और तुम्हारा CH बॉन्ड की वजह से लेट्स से डाइपोल मूवमेंट μ2 है, तो यू नीड टू नो कि μ1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन μ2, यानी कि जो डाइपोल मूवमेंट है, जो पोलैरिटी है CCl बॉन्ड की वो ज़्यादा है देन द CH बॉन्ड, एंड सो देयरफॉर डाइपोल मूवमेंट तुम्हारा निकल कर आएगा μ1 माइनस μ2. दिस इज गोइंग टू बी द नेट डाइपोल मूवमेंट. राइट, क्लियर? चलिए अनदर क्वेश्चन. तो इस तरीके से वी कैन डू द क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, यू लीव द क्वेश्चन एंड बाद में करेंगे करके, अरे क्यों करेंगे, वेरी सिंपल. सो अमंग द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है, ट्राइएटॉमिक है ना, देयर आर 3 एटम्स, सो दैट्स हाउ द क्वेश्चन हैज रिटन द ट्राइएटॉमिक. ओके, 3 एटम्स हैं यहाँ पे भी 3 एटम्स हैं, यहाँ पे भी 3 एटम्स, 3 एटम्स, 3 एटम्स, 3 एटम्स, all are having 3 atoms. The total number of atoms are 3. The total number of linear molecules or ions where the hybridization of the central atom does not have contribution from the d orbital is, यानी कि तुम्हें बताना है इसमें से कितने linear molecules हैं. You have to look for the linear molecules, यानी कि उनका linear होना चाहिए and they must not have a no, इनकी हाइब्रिडाइजेशन में डी नहीं आना चाहिए, यानी कि आपके पास sp है चलेगा, sp2 है चलेगा, sp3 है चलेगा, dsp2 है नहीं चलेगा, sp3d2 है नहीं चलेगा, dsp2 या फिर sp3d है ना, अगर sp3d है नहीं चलेगा. ओके, D2sp3 है नहीं चलेगा, यानी कि ऑल दोज हाइब्रिडाइजेशंस जहाँ पे तुम्हारे पास D आता है वो नहीं चलेंगे एंड ओनली दीज ऑर्बिटल्स विल वर्क. तो अगर कंसिडरिंग दिस ऑल, अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो व्हाट इट कुड बी. हाँ जी बताओ, करना शुरू करें. लिथियम बेरिलियम, इफ़ यू विल सी द BeCl2, तो BeCl2 इज जस्ट लाइक दिस. ओके, BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी sp N3 negative, N triple bond N, and this is going to be a coordinate bond like this, linear. The central metal line must not have the, this is also sp, linear, and sp. The third is N2O, this is N2O, sp, linear. If you will see NO2 positive, NO2 positive, sp, linear. Ozone,
Okay, this kind of ozone. So here we have one more lone pair present. Okay, no positive charge should be there, just remove all this. Okay, this is this kind of ozone. Linear, not linear. sp2, not linear. SCl2, if you're talking about SCl2, this is linear, no, not linear. ICl2 negative, linear. Does this have hybridization is DsP2? 5 hybrid orbitals, na? No, sorry. sp3d, sp3d. So will not consider because the hybridization is sp3d. Now what about I3 negative? This is linear, but again it is sp3d, so will not consider. XeF2, XeF2, is this linear? So of course this will also not considered. So how many linear molecules with the no d orbital involved are there? What is the right answer? Count it. It's sulfur, bache, not selenium. Chirag, why the SCl2 is V shape, but here we will also be having a lone pairs now. 2 lone pairs will be there. So this is an integer type question. What is your answer? Okay, 1, 2, 3 and 4. Okay, rest are not. Very nice. Another question, the sum of the numbers, though in the question the paper has given you the atomic number of sulfur, chlorine, iodine, xenon, but if you know how to draw the structures, then only you can answer the question. Otherwise the students keeps asking कि मैम atomic number दिया होगा नहीं दिया होगा, अगर दिया भी होगा तो what is of use यार, तुम लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, this is extremely expected from you कि तुम्हें ये सब तो आता ही होगा, क्योंकि इसके आए बिना तो you can't do any of your paper ना. चलो, the sum of the total number of lone pairs of the electrons on each central atom in the following species is. अब तुम्हें यहाँ पे इन species के total number of lone pairs को count करना है. Draw the structures of these molecules and then count the total number of lone pairs. Structures draw करो और फिर उनका total number of lone pair बताओ. This question is also of JEE Advanced and 2017. ये एडवांस 2017 का पेपर है का क्वेश्चन है. थोड़ा बहुत कर लो, उसके बाद मुझे बताओ. आई विल टेल यू इफ यू हैव एनी ऑफ द डिफिकल्टी. Done? It's very easy to do.
कैसे करेंगे इसे? सिंपली वी कैन डू द क्वेश्चन बाय द हाइब्रिड नंबर मैथड. हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी अप्लाई द हाइब्रिड नंबर मैथड ना, बस वही लगा दो. You will be able to do the question. Now this tellurium, this tellurium is a p block elements, है ना, and or for all the p block elements this method is applicable. ये पूरा का पूरा method हमारा applicable होता है, ठीक है. अब ये हाइब्रिड नंबर मैथड क्या कहता है? ये कहता है कि हाफ ऑफ v प्लस m माइनस c प्लस a विल टेल यू अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. अगर आप इसे सॉल्व करोगे, लेट्स से मैंने एग्जाम्पल लिया टेलुरियम वाला, TeBr6, तो पहली बात ये जो टेलुरियम है दिस बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, OSSCTEPO. तो ऐसा नहीं है, बिकॉज द हाइब्रिड नंबर मैथड इज मोर एप्लीकेबल फॉर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, दैट इज फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. वहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर लगाते हैं. सो फॉर दैट अगर तुमने टेलुरियम के लिए लिया तो टेलुरियम बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 16, तो यानी कि 6 इज द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन. तो हाफ ऑफ टेलुरियम के पास 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देयर आर 6 ब्रोमीन एटम्स, ओके. एंड ओवर दिस TeBr6 यू आर हैविंग अ 2 नेगेटिव चार्ज. तो 2 नेगेटिव चार्ज को हम +2 कर देंगे, तो अल्टीमेटली दिस कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ 6 और 6 12 13 14. 14 डिवाइडेड बाई 2 इज गोइंग टू बी 7. अब आउट ऑफ 7 हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट? अब 7 में से तुम्हारे पास 6 एटम्स है, तो 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे, एंड आउट ऑफ 6 1 विल बी दी लोन पेयर, तो तुम्हारे पास एक लोन पेयर आएगा. गॉट इट? तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उसको तुम क्या कर दोगे, उसको हटा दो, जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने बॉन्ड पेयर्स, एंड रेस्ट विल बी दी लोन पेयर्स. नाउ हियर द अनदर एग्जांपल दैट यू आर हैविंग, which is BrF2, and this is going to be positive. Similarly you can do half of bromine के लिए 7 electrons plus the number of monovalent atoms is 2 minus जो positive charge है उसके लिए -1 हो जाएगा plus 0. Ultimately this comes out to be half of 7 8 9. 9 में से 1 गया तो 8 बचा, यानी कि 2 4 जा 8 4. आउट ऑफ 4 आई एम हैविंग 2 एटम्स ओनली, तो यानी कि 2 विल बी दी बॉन्ड पेयर्स एंड 2 विल बी दी लोन पेयर्स. तो यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर्स कितने आए? द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2. ओके. अब अगला हम लोग बात करते हैं दैट इज SnF3 की. SnF3, तो इफ यू विल फिगर आउट व्हाट इज दिस SnF3, क्या कॉम्प्लेक्स है ये? Sn और F3. तो व्हेन यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस SnF3 यू विल फाइंड दैट कि जो हमारा सल्फर है वो बेसिकली तुम्हारे 3 बॉन्ड्स बनाता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, एंड इट विल बी फॉर्मिंग 3, एंड ये हो जाएंगे तुम्हारे पास 3 बॉन्ड्स विद फॉर द फ्लोरीन एटम्स. इफ यू विल सी यहाँ पे तुम्हारे पास कितना लोन पेयर निकल कर आ रहा है? सल्फर इज हैविंग अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6. तो नाइट्रोजन इज अ ट्राइवेलेंट एटम, इसने 3 बॉन्ड्स बनाए और फ्लोरीन के साथ बनाया ये. सो आर यू गेटिंग एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिकॉज यहाँ पे तुम लोग रादर देन हाइब्रिड नंबर मैथड यू कैन ऑल्सो अप्लाई दी स्टेरिक नंबर मैथड. तो अगर मैं स्टेरिक नंबर मैथड लगाऊंगी यहाँ पे, तो आई कैन ईजिली सी दैट देर इज अ 0 लोन पेयर्स. यहाँ पे 0 लोन पेयर्स है, ठीक है. हाइब्रिड नंबर मैथड लगाना थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं सल्फर को सेंट्रल एटम दूँ या नाइट्रोजन को, बट प्लीज़ कंसिडर सल्फर इज गोइंग टू बी दी सेंट्रल एटम. तो अगर हम यहाँ पे हाइब्रिड नंबर से भी करना चाहते हैं तो हाफ ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सल्फर के हो गए 6, 3 हो गए तुम्हारे पास मोनोवैलेंट एटम्स दैट इज फ्लोरीन, 6 7 8 9, ठीक है. अब 9 में से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन को और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नाइट्रोजन विल पुल द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये यहाँ से क्या कर रहा है, एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना. बिकॉज आई कैन शो इट लाइक दिस कि सल्फर के पास फ्लोरीन था, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, लेकिन ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बना रहा है, ठीक है. एंड दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बीइंग रिप्लेस बाय दैट. तो सल्फर पे पॉजिटिव आया तो यानी कि -1 हो गया, ठीक है. इफ यू विल break this bond like this, तो it will be -1, and so therefore half of 9 - 1 is going to be 8, और ये हो गया तुम्हारा 4 का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो तुम्हारे पास लगे हुए हैं वो भी तो 4 ही हैं, तो 4 ही बॉन्ड पेयर्स हो गए, और हेयर 0 विल बी द लोन पेयर. तो क्या आया? 0 लोन पेयर. नाउ हेयर द लास्ट इज XeF3 नेगेटिव. बड़े आराम से इसमें तुम हाइब्रिड नंबर मैथड लगा सकते हो, इट्स वेरी इजी.
हाफ ऑफ जेनॉन के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, मोनोवैलेंट एटम्स आर 3, नेगेटिव चार्ज के लिए +1 आ गया। 8 over 9, 10, 11, 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज कम्स आउट टू बी 6। आउट ऑफ 6 देर आर 3 एटम्स आई एम हैविंग, तो 3 बॉन्ड पेयर्स बनाएंगे और बाकी जो 3 होंगे वो क्या बनाएंगे, लोन पेयर्स बनाएंगे। सो इफ़ यू हैव टू ऐड देम अप, तो ऐड करोगे तो आएगा 1 और 2 3 और 3 6, यानी कि योर आंसर हैज़ टू बी 6। सम 5 नहीं आएगा चिराग, 6 आएगा, चेक करो। BrF2 पॉजिटिव पे 2 लोन पेयर्स, यस एब्सोल्युटली। डोंट यू गेट इट? चेक करो, XeF3 नेगेटिव है तो वहां पे यू विल बी हैविंग 3 लोन पेयर्स, तो टोटल नंबर इज 6। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब वापस से द क्वेश्चन इज, अभी ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से चल रहा था, बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन से चल रहा था। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी। जैसे ही मैंने देखा कि आई एम हैविंग H2 He2 Li2 Be2 B2 C2 N2 O2 F2 है ना, ये दिस इज O2 नेगेटिव, तो द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज इज, तो अब चलो जल्दी से बता दो मुझे डायमैग्नेटिक स्पीशीज कितने होंगे। सारे स्पीशीज दे दिए इन्होंने, H2 दे दिया, He2 दे दिया, फिर देन आफ्टर He2 पॉजिटिव दिया है। ओके, एंड अगेन दिस इज अ एडवांस क्वेश्चन, ये 2022 के एडवांस पेपर में पूछा गया था। दिस इज अगेन अ JEE एडवांस 2022 क्वेश्चन। H2 दिया है आपको, He2 दिया है, देन यू आर गिवन विद द Li2 दिया है आपको, और बेरिलियम का Be2 दिया है, देन द C2 हैज़ बीन गिवन, N2 हैज़ बीन गिवन, O2 पे नेगेटिव हैज़ बीन गिवन, F2 हैज़ बीन गिवन। H2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, He2 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, Li2 मतलब 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम का मतलब क्या हो, कितना हुआ, दिस इज 1s2 2s2, यानी कि 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में तुम्हें 10 हो गए, यहाँ पे तुम्हें 10 ही हो गए ना, हाँ एक सेकेंड, 2s2 2p1, हाँ, और 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7 14, यहाँ पे कितने हो गए, ऑक्सीजन में 16 और 1 17, फ्लोरीन में कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 9 and 18 इलेक्ट्रॉन्स यू विल बी हैविंग, ठीक है। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू हैव टू फिल, और उनको फिल करना शुरू कर दो। डाया He2 पॉजिटिव, पैरा, डायमैग्नेटिक स्पीशीज काउंट करने हैं, एक Li2 1s2 1s2 का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, डाया B2 1 2 3 4 5 6 7 8, डाया, तो ये भी डाया ये भी डाया, C2 1 2 3 4 5 6 7 8, देन आफ्टर 9 और 10, पैरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, डाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, पैरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, डाया okay, this is it. How many magnetic, 1 2 3 4 5 is the answer. I did a mistake there.
C2 इज 1:2, 2:2, 2p2 है ना. तो 2 to 4 5 6 6 12 electrons we have to fill. Sorry. 12 electrons we have to fill. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. 12 electrons. Yes. Now it is right. अभी ठीक है. This is also dia. Okay. Answer has to be 6. Clear? No Chirag, it's 6. मैंने गलती किया. I did a mistake in the C2. I counted the wrong number of electrons. तो उसको ठीक करोगे तो you will be getting 6. चलिए another question number 10. Among the B2H6, B3N3H6, N2O, N2O4, H2S2O3, the total number of molecules containing the covalent bond between two atoms of the same kind. यानी कि सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए, यानी कि लाइक के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए. टेल मी again, if you would ask me, this is again a question of advanced 2021. करो. B2H6 is something like right, B3N3H6. B3N3H6. We can show it like this कि nitrogen is forming a coordinate bond with this boron, because boron is having a one vacant p orbital and nitrogen is having a lone pair. This is how we can show. Okay, B3N3H6. Now the another molecule is N2O. N2O4. H2S2O3. H2S2O3. H2S2O8. The total number of molecules containing the covalent bonds between the atoms of the same kind. सेम काइंड में हो रहा है बॉन्ड? नो. सेम काइंड में हो रहा है बी के बीच में बॉन्ड या एन के बीच में बॉन्ड? नो. सेम काइंड में हो रहा है? यस. सेम काइंड में हो रहा है? यस. सेम काइंड ऑफ एटम्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है? यस. सेम काइंड ऑफ एटम्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है? यस. ओहो में हो तो रही है. ऑक्सीजन आर ऑफ सेम काइंड, इनमें भी तो हो रही है. सो योर आंसर इज, व्हाट इज योर आंसर? 4. कई बार बच्चे इसको कंसीडर नहीं करते हैं. व्हाई? अरे द क्वेश्चन वॉज आस्किंग द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि दो एक से एटम्स में बॉन्डिंग होनी चाहिए. तो यहाँ पे बीच में भी हैव द हाइड्रोजन, तो बी बॉन्ड नहीं बन रहा है. यहाँ पे बी बॉन्ड या बी एन नहीं बन रहा है. यहाँ पे एन बन रहा है, यहाँ पे भी एन बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे सल्फर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है.
एंड यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बन रहा है, दैट्स वाई योर आंसर इज 4 है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ओनली द बॉन्डिंग, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, यू कैन डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली। अगला क्वेश्चन चलो लेके चलते हैं। द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल्स बिकॉज, मैंने आपको बोला इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दी सॉल्युबिलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, फिजिकल इंट्रैक्शंस पे। इफ़ दिस इज़ द फिनॉल एंड दिस इज़ द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, अगर आप इसे ड्रॉ करते हो, दिस इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में देखा जाए तो लेस सॉल्युबल है देन द पैरा, देन द पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल्स, पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल्स। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहले ये बताओ, इज इट लेस सॉल्युबल? बॉन्ड एंगल कंपेयर करने में दिक्कत आता है, इसका मतलब VSEPR तुम्हारा अच्छा नहीं है चिराग। अगर VSEPR अच्छा कर लोगे रिपल्शन थ्योरी को तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट गो थ्रू वन ऑफ द सेशन जो मैंने तुम्हारा लिया हुआ है। VSEPR मैंने अभी केमिकल बॉन्डिंग एंड अकेडमी प्लस पे आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स, तो वहाँ पे जहाँ पे VSEPR वाला पढ़ो एंड देन यू टेल मी क्या दिक्कत आती है, ठीक है। आई डोंट बिलीव कि कोई दिक्कत बचेगी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इफ़ यू विल सी दिस इज़ अ स्टेटमेंट, बताना है तुम्हें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई इज़ दिस हैपन, पहली बात तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्यों सही है, थोड़ा बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हो। बिकॉज वी नो दैट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर मीन्स विद इन अ मॉलिक्यूल, अगर तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा देयर यू विल बी गेटिंग अ कीलेशन, और कीलेशन का मतलब क्या हुआ, यू विल बी गेटिंग स्टेबिलिटी, तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ गई। और अगर जैसे ही तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो अब वो वाटर से इंट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो विद इन अ मॉलिक्यूल बॉन्डिंग बनाने में लगा पड़ा है। तो वी कैन से दैट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल शोज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो लेस सॉल्युबल होता है। योर आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर B. Any doubt? I really don't think कोई भी डाउट बचा होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू इज जीरो, यानी कि अगेन द क्वेश्चन इज ऑन द डाइपोल मूवमेंट, यानी कि किस में तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, मतलब द मॉलिक्यूल हैज़ टू बी पोलर। देखो भाई, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे। अब ऐसे तो तुम बोलोगे मैम एवरी वन इज हैविंग द साइनाइड एंड Cl, सब में ज़ीरो 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 हो जाएगा। नाउ थोड़ा फिगर आउट करो, थोड़ा फिगर आउट करो, सब में कैंसिल दिख रहा है ना यहाँ तो। मैम तो पोलर तो कोई बचेगा ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई आंसर होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज द मिस्टेक दैट वी डू। नाउ द क्वेश्चन इज सिंपली, अगर तुमने क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो क्लोरीन इज गोइंग टू बी द क्लोरीन एंड दीज आर गोइंग टू बी द लोन पेयर्स, ये तुम्हारा क्लोरीन होगा, विल दीज आर द लोन पेयर्स। बट इफ यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनाइड, बट तुमने ये तो देख लिया दैट दिस इज नॉट पोलर, बट साइनाइड देखोगे तो यहाँ तो पोलैरिटी है। हियर यू हैविंग अ डाइपोल मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज अ डाइपोल मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन। अब देखो क्या ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है? इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द OH मॉलिक्यूल, अगर आपने OH ड्रॉ किया है तो OH पे भी यू माइट नो कि यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी पोलैरिटी है, देयर इज़ अ पोलैरिटी इन दिस बॉन्ड यहाँ पे। और ये अगर तुमने ले लिया डाइपोल मोमेंट, लाइक यू हैव टेकन अगेन दी OH, यहाँ पे भी लोन पेयर्स हैं, तो अब देखो यहाँ पे तो पोलैरिटी होती है, राइट। एंड SH की अगर हम लोग बात करते हैं, SH में भी यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो पोलैरिटी है, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी हाइड्रोजन। ओके, सो नाउ यू टेल मी व्हाट कुड बी योर आंसर। अभी भी थोड़ा सा तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा अपने आंसर को बताने के लिए। आंसर इज, अगर आप बेंजीन देखोगे तो आपको लगेगा कैंसिल हो रहा है, लेकिन पोलैरिटी कहीं और भी तो है। ओनली थर्ड, आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ।
वाई, देखो यहाँ तो कैंसिल हो ही गया, ये तो नहीं है, यहाँ पे बोथ आर साइनाइड्स। तो ये जो साइनाइड्स है क्या ये ऐसे है क्या? नो, ये मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ड्रॉ किया था। इफ़ यू विल सी, साइनाइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, साइनाइड तो लीनियर होता है ना। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैंने ड्रॉ नहीं किया तो तुम भी नहीं करोगे, यू हैव टू थिंक योर ओन ना। तो साइनाइड तुम्हारा ऐसे लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो अल्टीमेटली डाइपोल मूवमेंट पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो म्यू इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज इट वॉज अ लीनियर मॉलिक्यूल। क्या ये लीनियर होते हैं? नो, दे आर नॉट लीनियर। तो ये और ये दे आर गोइंग टू बी म्यू इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, म्यू इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। है मज़ेदार क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, पोलैरिटी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखनी, पोलैरिटी कहीं भी हो सकती है, एट एनी पर्टिकुलर बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये है तुम्हारा असर्शन एंड रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चन। सो अगर कोई भी बच्चा आँख बंद करके, मेरे को थोड़ा सा भरोसा करके अगर इन क्वेश्चन को, इस सेशन को देखता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाउ द सेशन हैज़ हेल्प यू। तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन कराना या तुम्हारा टेस्ट लेना इज़ नॉट द एम। अदरवाइज टेस्ट लेने के लिए तो देर आर सो मेनी टेस्ट सीरीज, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्री में तुम्हारे टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल एनी ऑफ देम एंड तुम कर सकते हो। द होल एम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ टू गिव यू अ क्विक रिकैप, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना, और तुम्हारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि तुम्हारे को रियलाइजेशन कराना कि जेई का पेपर क्या आता है, किस तरह की चीज़ें तुमसे पूछी जाती है, तो मैं हूबहू कराना। तो जेई ने जो पूछा है, अगर तुम उस चीज़ को लेकर अगर अपना प्रिपरेशन करोगे और अपने क्वेश्चंस को आंसर करोगे, तो यू विल बी बिकमिंग मोर डायरेक्शनल, है ना। तुम्हारा डायरेक्शनल एबिलिटी बढ़ेगी तुम्हारी कि तुम्हें पढ़ना क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और इस पूरे सेशन के बाद तुम्हें, यू विल बी एबल टू रियलाइज़ कि यार मेरी ये खामियां हैं, दीज आर माई वीकनेसेस, तो मुझे ये पे स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो वो तुम अगर वर्कआउट कर लोगे थोड़ा सा, अगर आफ्टर दिस क्लास अगर तुमने 3 से 4 घंटे भी अगर खर्च कर दिया केमिकल बॉन्डिंग पे अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, देन यू आर डन विद द टॉपिक। ओके, सो जस्ट डोंट गो थ्रू द थ्योरी अगेन एंड अगेन, बस पन्ने पलटे जा रहे हो। जस्ट फोकस ऑन कि अल्टीमेटली वट एवर यू आर लर्निंग वो तुम्हें सीखने में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली एवरी ईयर, हर साल क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है। मैंने तो बहुत थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं, बट आई विल शेयर द शीट विद यू इन माय टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे तुम्हें 30 मोर 30 मोर क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को फिर तुम वापस से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस वी आर लेफ्ट विद फॉर दिस होल सेशन। तो शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड आंसर एज पर द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारा कहाँ जा रहा है, आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन एज पर द ऑप्शंस गिवन बिलो। लिथियम क्लोराइड इज प्रिडोमिनेटली अ कोवेलेंट कंपाउंड। क्या लिथियम क्लोराइड एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है? थोड़ा सोचो ज़रा, कि अगर मैंने सोचा कि लिथियम है, तो लिथियम आता है तुम्हारा पीरियड नंबर 2 में, और तुम्हारा क्लोरीन आता है पीरियड नंबर 3 में। ये आता है लिथियम इधर पे, क्लोरीन आता है इधर। लिथियम कहने को तो अगर हम लोग बात करें तो लिथियम का साइज़ बड़ा होता है, फिर हमारा साइज़ डिक्रीज़ होता होता जाता है, तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा हो जाता है, लेकिन क्लोरीन का साइज़ नीचे जाता है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ओके, सो दिस लिथियम क्लोराइड प्रिडोमिनेटली अ कोवेलेंट कंपाउंड, और रीज़न दे रहा है कि प्रिडोमिनेटली कोवेलेंट कंपाउंड होता है बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द लिथियम एंड क्लोरीन इज़ टू स्मॉल, क्योंकि उनके बीच में पोलैरिटी ज़्यादा नहीं है। मतलब इफ़ यू विल सी इन द केस ऑफ द Li एंड Cl के बीच में अगर हम बात करें, तो लिथियम अगर अपना के पास अगर अपने 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के पास 7 है, ठीक है। और यहाँ पे देर इज़ नो मच पोलैरिटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है अगर तुम देखोगे तो। दैट्स वाई दिस इज़ मोर कोवेलेंट इन नेचर। तो क्या तुम्हें लगता है, इज दिस द राइट असर्शन एंड इज दिस द राइट रीज़न? लेकिन यहाँ पे साइज़ डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई रियली डोंट थिंक कि साइज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लिथियम टू फ्लोरीन साइज़ डिक्रीज हो रहा है, बट फ्लोरीन टू क्लोरीन वापस से साइज़ बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा साइजेस का वेरिएशंस नहीं है। अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बात करोगे, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, ओके, और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.0। अब बताओ,
Do the question and tell me. Take your time. क्या है आंसर? अब देखो, जब आप लिथियम की बात करोगे, लिथियम ने फ्लोरीन के साथ बनाया, लिथियम ने क्लोरीन के साथ बनाया, लिथियम ने ब्रोमीन के साथ बनाया, लिथियम ने आयोडीन के साथ बनाया, तो यहाँ पे हमारे कैटाइन का साइज़ सेम है, लेकिन हमारे एनाइन का साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि हमारी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो पहला चीज़, लिथियम फ्लोराइड आयनिक होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा लिथियम क्लोराइड होता है दैट इज़ कोवेलेंट, ये कोवेलेंट ही होता है। तो पहला तो एजर्शन एकदम ठीक है। ठीक है, दिस इज अ प्रिडोमिनेटली कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन ये कहना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिथियम और क्लोरीन में बहुत कम है, ये गलत है। क्योंकि अगर तुम पॉलिंग्स प्रिंसिपल से भी देखोगे तो क्लोरीन और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2.0 का डिफरेंस आएगा। तो जब भी हमारे पास डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है तो वो हमारा वो फिर मतलब अगर डिफरेंस हमारा बढ़ रहा है तो इट बिकम्स आयनिक है ना। तो ये कहना कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बहुत कम है, दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग पॉइंट, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्योंकि साइज बढ़ता है क्लोरीन का तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से द मॉलिक्यूल बिकम्स कोवेलेंट इन नेचर। क्योंकि लिथियम और क्लोरीन में अगर तुम कंपेयर करोगे तो लिथियम का साइज़ छोटा है और क्लोरीन का साइज़ बड़ा है। तो जब भी एज पर द फजांस रूल ऑफ पोलराइजेशन कैटाइन छोटा होता है और एनाइन बड़ा होता है तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ही होता है। तो इसका ये रीज़न है, ना कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रीज़न है। तो हम कह सकते हैं एजर्शन इज करेक्ट बट द रीज़न इज इनकरेक्ट। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो ये दो बातें हमें समझनी है। अब ये लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, रीड द फॉलोइंग एजर्शन एंड रीजन एंड आंसर एज पर द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब क्या आंसर करोगे, क्या क्या पूछा जा रहा है, चलो फिगर आउट करो। एजर्शन दिया द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ O3 इज दिस। अगर तुम्हें याद हो तो मैं भी जब बार बार ओजोन का स्ट्रक्चर बना रही थी आई वॉज ऑल्सो ड्रॉइंग लाइक दिस, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, तो इसने शेयर करके 8 हो गए, इसने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे दे दिया एंड ये एक लोन पेयर इसके पास बचता है एंड इसके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। सो इफ यू विल ड्रॉ इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आप इफ यू विल बी रिप्लेसिंग इट बाय द नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड तो डेफिनेटली इट विल बी रिप्लेस बाय अ सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे रहा है, बट क्या यहाँ पे हमारे पास फिर चार्ज क्या रहेगा, इसने इसको दिया तो आई हैव टू शो विद अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ओजोन का ये होता है, बिल्कुल यही होता है। इलेक्ट्रॉन्स भी देखो 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ये रीज़न। ये जो होता है स्ट्रक्चर इज़ नॉट अलाउड बिकॉज ऑक्टेट अराउंड ऑक्सीजन एटम कैन नॉट बी एक्सपैंडेड। ये स्ट्रक्चर अलाउड नहीं होता क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट होता है हम उसे एक्सपैंड नहीं कर सकते, ऑफकोर्स नहीं कर सकते। ऑक्सीजन अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा। ऑक्सीजन इज जस्ट हैविंग द 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो मैक्सिमम उसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी 2d और समथिंग, सो डेफिनेटली द बोथ आर करेक्ट, है ना। तो आपका क्या होगा, एजर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज, सो व्हाट इज द राइट आंसर। एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अब मुझे बताओ क्या रीजन सही आंसर दिया है हमने एजर्शन का? हाँ जी, इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन? एब्सोल्युटली, ऑक्टेट अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई यू कैन डू अ डबल बॉन्ड। तुम यहाँ पे इसको चाहकर भी ऐसे नहीं कर सकते। yes, this is a right explanation। तुम कह रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, ओके लेट मी ड्रॉ अ डबल बॉन्ड, नो, बिकॉज ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, you can't do this, so this will become wrong। so yes, absolutely we can say that assertion and reason both are correct but the reason is the correct explanation of the assertion। बिल्कुल सही explanation है क्योंकि ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता है। okay, so this is it guys, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस, क्योंकि बच्चों में पेशेंस की आजकल बहुत कमी हो गई है। दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द रीज़न कि उनका जो सक्सेस रेट है, उनका जो प्रिपरेशन लेवल है वो बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहा है।
ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन एन एवरेज, ठीक है। जब भी हम कोई बात करते हैं, कोई टीचर बात करते हैं, वो एक एवरेज को लेके करते हैं, किसी स्पेसिफिक पे टारगेट कभी किसी टीचर का नहीं होता। सो गाइज आई जस्ट वॉन्ट यू कि तुम अपना डेडिकेशन दो अपनी पढ़ाई पे और लगो। एंड दीज आर द 14 क्वेश्चन जहाँ से तुमने कुछ कुछ सीखा ज़रूर होगा। तो प्लीज़ एक बारी लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल और थोड़ा सा खुशी स्प्रेड कर दो ताकि हमें भी खुशी आए, हम भी हंसते मुस्कुराते पढ़ाएं। सो योर कॉमेंट्स मेक्स अस फील वेरी गुड and definitely this is the reason of motivation to bring such free and special sessions for you, ठीक है। और तुम्हारा टाइम सेव हो, कम टाइम में ज़्यादा सीख पाओ, यही मेरा एम है। एंड विद दिस थिंग, अगर तुम बच्चों को और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर फाइल विच कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस। इसको भी मैं क्या करूँगी, केमिकल बॉन्डिंग के एडवांस और मीन्स लेवल के क्वेश्चंस है ये। आई विल अपलोड दिस पर्टिकुलर फाइल ओवर द माई टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से तुम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एंड इफ़ यू वांट देयर आंसर की, आई विल ऑल्सो शेयर द आंसर की, मैच योर आंसर्स, बट पहले कर लो फिर मैं आंसर की शेयर करूँगी, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट देन आई विल ऑल्सो बी कमिंग अप विद वन मोर सेशन ताकि हम इस पूरे इन क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर सकें। लेकिन मुझे लगता है केमिकल बॉन्डिंग पर जो मैंने आज डिस्कशन किया है वो 14 क्वेश्चन है, बट वो डिस्कशन अपने आप में काफ़ी हेल्दी है, ठीक है, टू मेक यू रिवाइज एंड रिकॉल ऑल द फ्यू ऑफ द थिंग्स। सो दिस इज इट गाइज फॉर टुडे एंड आई होप टू सी यू टुमारो विद वन मोर सेशन, ठीक है। एंड तब तक के लिए मेरे प्लस क्लासेस चल रहे हैं, आई एम टीचिंग यू, सो refer to my courses and yes don't forget to hit like for the session। और कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है या कोई भी टॉपिक यू वांट मी टू ब्रिंग इन सच द सेम फॉर्मेट या कुछ चेंजेस भी अगर तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो मेरे से, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन because it is good to work on the feedbacks given by the students। okay, bye guys, take care, have a nice day।